चक्कर में मेरे बच्चे की जिंदगी चली गई। मेरे पास तो मेरे बच्चे के अलावा कोई था ही नहीं, मैं क्या करूंगी अब। Her 23-year-old son lost his life after an SUV hit his bike in Delhi. The driver was underage and was later granted interim bail. मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। I am a helpless mother alone. The fatal crash took place on 3rd February near Lal Bahadur Shastri College in Dwarka. Police said the SUV involved, a Scorpio, was being driven by a 17-year-old without a valid driving license. The SUV was traveling at high speed on a single-lane road when it collided head-on with Sahil Dhaneshra's motorcycle coming from the opposite direction. The vehicle then crashed into a stationary Swift Desire taxi parked on the roadside. Dhaneshra died at the spot. The taxi driver Ajit Singh sustained injuries and was taken to IGI hospital where his statement was recorded. पीछे से वो स्कॉर्पियो आई और उसने मेरी गाड़ी में ठोक दी। A video recorded from inside the SUV later surfaced. The footage showed the vehicle narrowly avoiding an oncoming bus moments before the crash. The clip ended just before impact and जो वीडियो भी प्ले हुआ है दैट्स द रियल वीडियो बाय द वे, इट वाज बीइंग रिकॉर्डेड फॉर द रील के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे कैमरा ऑन करके बच्चे 17 साल के। जो अभी तुमने क्लिप देखी दैट वाज द रियल वीडियो। was being examined as part of the police investigation. Postmortem findings confirmed that died due to severe internal injuries, including head and chest trauma, resulting in hemorrhagic shock. The juvenile driver was apprehended at the scene and produced before the Juvenile Justice Board. He was initially sent to an observation home. On 10 February, the board granted him interim bail, citing his ongoing board examination. भाई इस बच्चे ने एक बच्चे की जान ले ली और दूसरे के गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी ठोक दी, वो हॉस्पिटल में है और कोर्ट ने इसको छोड़ दिया क्योंकि इसके बोर्ड एग्जाम्स है। तुमको फनी बात पता है? जो बंदा स्कॉर्पियो चला रहा है 17 साल की उम्र में, फोन पे रील बनाते, उसको खुद ही नहीं देने बोर्ड एग्जाम्स। भाई मैं मान ही नहीं सकता वो बंदा बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत सीरियस है। आई एम प्रिटी श्योर भाई तुम उस बच्चे से, भाई तुम एक चीज समझो, इट टेक्स अनदर लेवल ऑफ प्रिविलेज टू डू दिस एट 17-year-old। 17 साल की उम्र में ये एक एसयूवी में बैठ के रील बनाते बनाते 2 लोगों की जान खतरे में डालना, एक की जान ले लेना, ये इतने उच्च दर्जे के प्रिविलेज का नतीजा है कि मैं तुमसे लिखित दे रहा हूं ये बात। उस बंदे से पूछो 10 दिन जेल में रहे या बोर्ड एग्जाम्स लिख, वो बोलेगा जेल में रह जाऊंगा, मैं PS5 दे दो मेरा बस। Police seized all 3 vehicles and conducted mechanical inspections. CCTV footage from the areas has also been collected. An FI was registered under relevant sections of the Bharatiya Nyaya Sanhita and further investigation was underway. The incident came amid growing concerns over underage driving. Data from the Ministry of Road Transport and Highways showed that 11,890 road accidents involving underage drivers were reported across India. 12,000 एक्सीडेंट्स ऑफ अंडरएज ड्राइविंग, मतलब 12,000 बार अंडरएज लोगों ने एक्सीडेंट करा है। भगवान जाने कितनी मौतें हुई होंगी, मतलब 12,000 बार 18 साल से कम साल के बच्चों ने एक कार से एक्सीडेंट करा है और वो रिपोर्ट हुआ है। तो एक्चुअल नंबर कितना ज़्यादा होगा और उससे बड़ा नंबर कितना ऐसे बच्चों का होगा जो ड्राइव करते हैं लेकिन एक्सीडेंट नहीं हुआ है अब तक। In 2023-2024, including 231 cases from Delhi. Under the Motor Vehicles Act, parents who allow underage children to drive can face fines and imprisonment, and vehicle owners can also be held responsible if an accident occurs. Please save your children and help me also. भाई कितना बुरा लगा था भाई, holy shit bro, I saw this moment and I was like what the fuck bro, my god. और इनकी रील के चक्कर में मेरे बच्चे की जिंदगी चली गई। बाय द वे यू नो व्हाट मेक्स इट वर्स, जो शायद इस वीडियो में, आई डोंट नो इस वीडियो में वो बताया कि नहीं बताया, ये जो इसकी मम्मी है ना, शी इज़ अ सिंगल मदर। लिटरली ऑल शी हैड इन दिस वर्ल्ड वाज हर चाइल्ड। 23 साल का लड़का, शी इज़ अ सिंगल मदर, देयर इज नो फैमिली। मेरे पास तो मेरे बच्चे के अलावा कोई था ही नहीं, मैं क्या करूंगी अब। Her 23-year-old son lost his life
यार अब देखो, तुमको पता है न्यूरमबर्ग ट्रायल्स क्यों हुए थे? तुमको पता है न्यूरमबर्ग ट्रायल्स क्यों हुए थे? वर्ल्ड वॉर टू is largely considered to be some of the worst crimes ever committed in the history of humanity. दूसरी वर्ल्ड वॉर के बारे में ये परसेप्शन है कि ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा घटिया क्राइम्स उस वक्त कमिट हुए हैं। क्या क्या कमिट हुआ है? पर्ल हार्बर, जापानीज लोगों ने कामेकाजे ड्रोन्स मार दिए, लोग मर गए, इनोसेंट लोगों पे बॉम्बिंग, मस्टर्ड गैस यूज हुआ, हिटलर ने जूस को जला दिया, गैस चेम्बर्स, परसिक्यूशन, ग्रेप वगैरह वो तो कॉमन है, वॉर क्राइम्स नॉर्मल तो कॉमन है, बच्चों को मार दिया, ये सब कुछ नहीं है। न्यूक्लियर बॉम्ब तक फोड़ दिए हिरोशिमा नागासाकी में। तो पॉइंट ये है कि आप जो जो घटिया क्राइम्स इमेजिन कर सकते हो वर्ल्ड वॉर टू में हो गए, घटिया से घटिया। ठीक है, तो न्यूरमबर्ग ट्रायल्स इसलिए हुए एंड टोक्यो ट्रायल्स कि जो लोग उन्हें ये क्राइम्स कमिट कर रहे हैं जर्मनी से, क्योंकि जर्मनी हार गई थी, उनको घसीट के लाया जाए और उनके क्राइम्स के लिए उनको पे करवाया जाए, उनको पनिश किया जाए। Some of the worst crimes in the history of humanity. So you had people in Nuremberg, people कौन से लोग? High ranking SSS officials, high ranking German officials, high ranking, Tokyo trials में Japanese लोगों के, Japanese generals के trials हुए थे. So they were Nuremberg trials, they were Tokyo trials. उस वक्त कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं होता था. दैट वाज लाइक द फर्स्ट टाइम दे वर डीलिंग विद सच अ प्रॉब्लम कि एक देश के लॉ से दूसरे देश के लॉ के लोगों को कैसे पनिश किया जाए, क्योंकि उनके देश के हिसाब से तो वो सही कर रहे थे. सो पॉइंट बी, सम ऑफ द वर्स्ट क्राइम्स इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, उनके लिए भी ट्रायल्स इस्टेब्लिश किए गए, उनके लिए लॉयर्स लाए गए, लॉयर्स ने दलीलें दी, ट्रायल्स चले, रिकॉर्ड हुए, पब्लिकली ब्रॉडकास्ट भी हुए, आज भी उनकी फाइल्स और रिकॉर्डिंग्स हैं. तो तुम सोचो वहां पे ऐसे ऐसे ऑफिशियल्स थे, एसएसएस के ऑफिशियल्स, जिनके ऑर्डर्स के कारण 5-6 लाख ज्यूज को जिंदा इनोसेंट जला दिया गया. मतलब गैस से मार दिया गया, जला दिया नहीं गया बट गैस से मार दिया गया. ऐसे ऐसे बंदे वहां पे प्रेजेंट थे न्यूरमबर्ग ट्रायल्स में. ठीक है, बहुत कॉमन चीज़ है ये, जिन लोगों को भी पता होगा उनको पूरी हिस्ट्री पता होगी. अब मैं क्यों बता रहा हूं ये तुम्हें? इसलिए क्योंकि जब उनका डिफेंस दिया जा रहा था तो बहुत वैलिड लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस दिए गए. जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ लिस्ट कर देता हूं. कमांड ऑफ द सॉवरेन, कि भाई अगर हम जर्मन हैं तो जर्मन सॉवरेन का कमांड हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी है. तो वो तो सही काम कर रहे थे. आप किसी दूसरे देश के, तो आपका कमांड ऑफ सॉवरेन दूसरा है, जो लॉ है आपका वो दूसरा है, तो आप अपने हिसाब से सही काम कर रहे हो, तो आप उनके काम को गलत नहीं बोल सकते जस्ट बिकॉज वो आपके अगेंस्ट है, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं. सेकंड आर्ग्यूमेंट कि भाई ऑब्वियसली वॉर चल रही है, अगर वो गोली मार रहा है तो तुम्हें भी मारोगे और तुम प्रिएम्टिवली चीजें करोगे जीतने के लिए. थर्ड आर्ग्यूमेंट कि भाई हमें मन नहीं था, ऊपर से ऑर्डर आ रहा था, अगर हम नहीं करते तो हमारे बीवी बच्चों को मार देते. मतलब दुनिया भर के आर्ग्यूमेंट्स दिए गए, और ये आर्ग्यूमेंट्स बस नाम भर के नहीं दिए गए, दे एक्चुअली वर्कड. सम ऑफ देम वर्कड. बहुत सारे लोगों को हैंग करा गया, बहुत सारे लोगों को छोड़ भी दिया गया. देयर वर पीपल अक्विटेड. ऐसा नहीं कि कोई अक्विट नहीं हुआ. किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया, किसी को इम्प्रिजनमेंट दिया, किसी को फांसी लगा दी. और यूएस वाले तो इतने हरामी है, कुछ लोगों को तो अपने पास ही ले लिया कि भाई तुम साइंटिस्ट हो, तुम ये हो, तुम हमारी मदद करो. बट एनीवे, दैट्स नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज कि इवन पीपल who are indirectly/directly responsible for committing some of the worst crimes in the history of this planet were given a trial, a fair trial. Fair तो बिल्कुल नहीं था. A trial, an opportunity to at least put their defense forward. And the beautiful thing is that defense was actually kind of logical, which helped some of them get acquitted.
उनके हाथों से लाखों लोग मरे, एक दो नहीं दोस्त, लाखों। उन फिर भी उनका डिफेंस आया और वो डिफेंस लोगों ने समझा और वो एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, लेकिन जो मेरे और तुम्हारे एज के लोग हैं 2026 में, जो ड्रंक ड्राइविंग करते हैं, ये ड्रंक ड्राइविंग का केस नहीं है ये वाला केस, बट ड्रंक ड्राइविंग इसमें रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि वो भी, ये एक नेग्लिजेंट ड्राइविंग का केस है और ड्रंक ड्राइविंग भी एक नेग्लिजेंस की तरह देखी जाती है। मैं तुम्हें आज बताता हूं ये, और तुम्हें पूरे इंडिया में कोई नहीं मिलेगा जो तुम्हें ये बोल रहा है इतने ऐसे। ड्रंक ड्राइविंग इज वर्स देन द फकिंग वॉर क्राइम्स कमिटेड इन वर्ल्ड वॉर 2। आई विल टेल यू वाई। लॉजिकली तुम्हें एक एक शब्द बताऊंगा वाई। जो क्लब में तुम दारू पी रहे हो उसमें लिखा है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जो दारू की बोतल तुम पी रहे हो उसमें लिखा है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जिस गाड़ी में घुस रहे हो गाड़ी वाले बोलते हैं लाइसेंस देते वक्त डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जो सड़क पर तुम चल रहे हो उसमें लिखा है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। 20-30 साल के हो गए हो, हर रोज देखते हो लोग मरते हैं, टीवी शोज में दिखाते हैं, टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं, मूवीज में दिखाते हैं। डिस्क्लेमर गवर्नमेंट बोल बोल के थक गई है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। तुम्हें पता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको नहीं पता है ड्रिंक एंड ड्राइव करने से लोग मरते हैं। कौन से लोग मरते हैं? ये नहीं कि मैं मर रहा हूं, मेरे बाजू वाला मर रहा है, एक ही कोई मर रहा है ना। तुम जिस कार में बैठे हो तुम तो मरोगे ही मरोगे, तुम्हारे साथ वाले लोग मरेंगे। सड़क पे इनोसेंट आदमी जो तुम्हारे साथ है ही नहीं वो भी मर जाएगा। एंड द वर्स्ट पार्ट अबाउट इट is that you will say it was unintentional. You will call it an accident. How the fuck is it unintentional? How the fuck is it an accident? जब तुम जानते हुए ये कर रहे हो, एक टोटली अवॉइडेबल हुई चीज। ये एसयूवी में जो बंदे बैठते हैं, स्कॉर्पियो वगैरह लेके, थार वार लेके या पोर्शे लेके, लाखों करोड़ों की गाड़ियां हैं, तुम्हारे पास उबर करने के पैसे नहीं है। जो तुम क्लब में जा रहे हो जहां पे तुम 40,000 की दारू पी रहे हो, 12,000 की दारू, 10,000 की दारू, उसके बाद तुम एक लाखों की गाड़ियां चला रहे हो, करोड़ों की गाड़ियां चला रहे हो। तुम्हारे पास एक ऑटो करने के पैसे नहीं है, एक उबर करने के पैसे नहीं है, एक ड्राइवर रखने के पैसे नहीं है। ड्रंक ड्राइविंग भाई मैं तुम्हें फैक्ट बता रहा हूं, इट्स लिटरली अ प्रेफरेंस। जानबूझ के करते हैं लोग, अनइंटेंशनल घंटा कुछ नहीं है। और ये पता वर्स क्यों है, वॉर क्राइम से वर्स क्यों है? जो कोई ऐसा एवोकेटिव स्टेटमेंट नहीं दे रहा था मैं। आई विल लॉजिकली प्रूव इट टू यू कि इट्स वर्स, बिकॉज यू कैन नॉट जस्टिफाई इट। यू कैन एक्चुअली जस्टिफाई मर्डर्स। तुम्हें किसी से रिवेंज लेना, तुम बोल दोगे मैंने रिवेंज के कारण करा, मैंने मर्डर कर दिया। एक्चुअल में वो जस्टिफिकेशन हो सकता है। तुमने मान लो किसी लड़के का किसी ने ग्रेप कर दिया, उसने उसका गला काट दिया, इवन दो ज्यूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से ये खराब बात है, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। ह्यूमन टू ह्यूमन अगर तुम देखो, कहीं ना कहीं इंसान बोलेगा शायद जस्टिफाइड था। किसी ने तुम्हारे छोटे भाई को मार दिया, तुमने जाके उसे मार दिया, बोलो जस्टिफाइड हो सकता है। जब दो देश आपस में लड़ रहे हैं, तुम्हारी ड्यूटी बनती है एज एन आर्मी गाय टू किल द अदर पर्सन। तुम्हारी ड्यूटी है, क्योंकि तुम्हारे घर में इन्वेट करके वो तुम्हारे बीवी बच्चों को मार देंगे, जस्टिफाइड। हिटलर ने बोला जूस को मार दो, तुमने मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि हिटलर तानाशाह है, तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो ओन करता है सब, वो तुम्हें मरवा देगा ट्रीजन के लिए, तो तुमने मार दिया, जस्टिफाइड। वर्स्ट ऑफ ऑल, तुम कुछ भी इमेजिन कर लो यार, तुम अगर एक साइकोपैथिक किलर भी हो ना, तो भी तुम क्या बोलोगे कि भाई मुझे मजा आ रहा था, मैंने अपने प्लेजर के लिए मार दिया। अगेन नॉट गुड, स्टिल अ पॉसिबल जस्टिफिकेशन। ड्रंक ड्राइविंग का जस्टिफिकेशन ही नहीं है। ड्रंक ड्राइविंग का जस्टिफिकेशन ही नहीं है भाई। तुम सोचो ऐसा क्राइम जिसका जस्टिफिकेशन नहीं है, जो और इसके साथ साथ दैट्स द मोस्ट इजीली अवॉइडेबल क्राइम। दैट इज द मोस्ट इजीली अवॉइडेबल क्राइम, अ टोटली ऑप्शनल क्राइम। लुक एट इट दिस वे, एक चोर है जो कह रहा है मैंने चोरी करी क्योंकि मुझे भूख लगी, और एक चोर है जैसे चोरी करने की जरूरत नहीं है और वो चोरी करे जा रहा है।
तो विच वन इज वर्स? और इससे ऊपर एक आयरनी की बात यह है कि ड्रंक ड्राइविंग को मर्डर से नीचे देखा जाता है, एक एक्सीडेंट की तरह देखा जाता है। मैं ये कहता हूं ड्रंक ड्राइविंग तो मर्डर से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि मर्डर भी बहुत सारे वैलिड रीजन के कारण होता है। कभी कभी सेल्फ डिफेंस पे आप जो करते हो वो मर्डर ही होता है एक तरीके से, बस इंटेंशन टू किल नहीं होता, तो आप सेल्फ डिफेंस में उसको एक्सक्यूज कर देते हो। एक्सीडेंटली लोग भी मरते हैं, दुनिया भर की चीजें हैं। एक यूएस में पैशनेट क्राइम, हीट ऑफ द मोमेंट, यहां पे भी हीट ऑफ द मोमेंट का एक्सक्यूज चलता है। होमिसाइड, मर्डर एंड होमिसाइड के बीच में डिफरेंस, इंपल्सिव डिसीजंस लेना, इंपल्सिवली गुस्सा आ गया, रोड रेज हो गई, 300 वर्सेस 302, फिर 304, 300 होमिसाइड, 302 मर्डर, 304 एक्सीडेंटल ड्राइविंग में तुम रैश ड्राइविंग करके तुमने किसी को जान से मार दिया और तुम्हें बेल मिल जा रही है। बाकी दोनों में बेल नहीं मिल रही इजीली, बट वहां पे फाइन दो और बेल लो और निकल लो, या तो 5 6 7 साल की सजा मैक्स टू मैक्स। इंसान तीनों जगह मरे हैं, एक में तुम्हें फांसी में फंसाने की बात कर रही है, एक में तुम्हें बेल देकर छोड़ दे रहे हैं। मैं तुम्हें यह कहना चाह रहा हूं कि मेरे और तुम्हारी एज के लोग जो दारू पी के गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, और मुझे इतना गुस्सा आता है भाई, आई स्वेयर टू गॉड, मैंने इतनी लड़कियों के रील्स देखे, इतनी लड़कियों के रील्स देखे हैं भाई, जो गाड़ी में बैठ के वो स्टाइरोफोम वाले कप नहीं होते बहनचोद 50 रुपए के एक, जो बस एस्थेटिक लगते हैं, कोई उनका वो नहीं है। आई डोंट थिंक दे आर वर्थ दैट मच मनी। हाथ में पकड़ी है 4 लड़कियां और एक बंदा ड्राइविंग कर रहा है, और भाई ये लो गाना बच रहा है पीछे कोई तो, और रील डाल रहे हैं, खुशी खुशी रील डाल रहे हैं। दारू पी के कूल लगता भाई, दारू पियो भाई, जितनी पीने पियो, बट कितनी बार बताना पड़ेगा भाई कि ड्रंक ड्राइविंग से लोग खुद नहीं मर रहे हो, तुम सिर्फ खुद को जान में नहीं डाल, खुद को खतरे में नहीं डाल रहे हो, तो यू आर फकिंग टॉकिंग अबाउट इनोसेंट पीपल जिनका कोई लेना देना नहीं है। अगर हाइपोथेटिकली कोई ऐसी लेन होती जहां पर सिर्फ दारू पीने वाले लोग जा रहे हैं, तो तुम गाड़ी चलाओ, ठोको एक दूसरे को, मर जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और भाई इट्स जस्ट, मैं बस ये कहना चाह रहा हूं भाई, एक ऐसा क्राइम जो इंटेंशनल है मेरी नजरों में वो छोटा है कंपेयर टू ऐसा क्राइम जो अनइंटेंशनल है, अवॉइडेबल है, और तुम्हें पता है, और फिर तुम वो कर देते हो, और फिर तुम एक्ट करते हो कि अरे मैं तो जानता नहीं था, मेरे से गलती हो गई, या फिर ये तो एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट नहीं है दोस्त वो। एट दैट पॉइंट इट्स अ कॉन्शियस डिसीजन, इट्स अ फकिंग चॉइस। एट दैट पॉइंट इट इज अ चॉइस, एब्सोल्युटली अ चॉइस। और ये हुआ क्यों? नॉवेल्टी के लिए, नॉवेल्टी के लिए, लिटरली नॉवेल्टी के लिए, टाइम बचाना था। बहुत सारे लोगों को तो टाइम भी नहीं बचाना होता, उनको बस इसलिए होता है कि भाई उनको मजा आता है दारू पीने के बाद गाड़ी चलाने में, और उससे ये सारी चीजें हो जाती हैं। तुम पेपर में लिख के देखना, जो मैंने जो बातें बोली, तुम लिटरली पेपर में लिख के देखना, जितनी बातें मैंने तुम्हें बोली है ना, तुम पेपर में लिख के देखना, कंपेयर करना कि ये दोनों क्राइम्स में सबसे खराब क्राइम कौन सा है, और तुम्हें लॉजिकली समझ में आएगा कि ड्रंक ड्राइविंग खराब है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लॉजिक्स हैं जो लेफ्ट वाले साइड को डिफेंड कर सकते हैं, न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स वाले उसको, बहुत सारे ऐसे लॉजिक है तो डिफेंड करते। तुम सोचो वर्ल्ड वॉर 2 के क्राइम्स डिफेंड हो जा रहे हैं, ड्रंक ड्राइविंग नहीं हो पा रही, तो ये कितनी नीच चीज है, और लोग अभी भी कर रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं। The probability that they will face consequences is low as India, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी यार वो है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये दिक्कत है भाई, लोग ड्रंक ड्राइविंग को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। It should definitely be treated as murder, and worse than murder actually, worse than murder. It is absolutely terrible. इससे डिस्गस्टिंग चीज कुछ नहीं है। ये डिस्गस्टिंग इसलिए क्योंकि ये इतनी इजीली अवॉइडेबल है, दैट्स द होल पॉइंट, दैट्स द होल पॉइंट। ये इतनी इजीली अवॉइडेबल है और फिर भी लोग करते हैं, दैट्स द होल पॉइंट। बट वॉज द ड्राइविंग ड्रग? अरे इस केस की बात नहीं कर रहा हूं मैं यार, मैं इस केस की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट नेग्लिजेंट ड्राइविंग इन जनरल।
नेग्लिजेंट ड्राइविंग, ड्रंक ड्राइविंग मेरे लिए सेम है, सेम लेवल पे है। मैं इस केस की बात नहीं कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, बट मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि जैसे ये 17 साल का था, ये क्या है, कॉन्शियस डिसीजन ही तो है। 17 साल का बच्चा एक एसयूवी चला रहा है, ऑल्टो भी नहीं, एसयूवी, और एक बच्चे की जान ले ली, उसके बाद दूसरे आदमी को ठोक दिया। ऐसा भी नहीं कि एक एक्सीडेंट हुआ, एक ही बार में 2 एक्सीडेंट कर दिए उसने। और अब वो बोर्ड लिख रहा है, एग्जाम लिख रहा है, क्योंकि कोर्ट ने बेल दे दी। इट इज एब्सोल्युटली अ मर्डर। और भाई एज अ ह्यूमन मुझे बुरा लगता है यार, अगर वो बच्चा मेरे सामने होता तो मुझे कहीं ना कहीं दया आती कि भाई यार बच्चा, ये छोटा बच्चा है यार 17 साल का, इसको छोड़ देना चाहिए। यही तो दिक्कत है यार ह्यूमैनिटी की वजह से, मतलब कितनी अजीब बात है। पेरेंटिंग इशू है भाई, ये अमीर लोगों को ना, उनके ना बहुत कम ऐसे मैंने अमीर लोग देखे हैं भाई जो बच्चों की केयर करते हैं, घंटा कोई केयर नहीं करता भाई, ये अपने उसमें बिजी होते हैं भाई। पेरेंटिंग तो क्या ही है भाई। तुम्हें क्या लगता है अमीर की औलाद बिगड़ैल क्यों होती है, गरीबों की क्यों नहीं बिगड़ैल होती है औलाद? क्योंकि पेरेंट्स को घंटा फर्क नहीं पड़ता। दैट्स व्हाट इट इज़। वो अपने में ही बिजी होते हैं, जी रहे होते हैं।